Welcome back. Today we will go a step further. Power requirement by pumps. In the last chapter we talked about the energy lost or gained. यानी HA हमने कैलकुलेट करना दिखाया आपको, HR कैलकुलेट करना दिखाया, HL. Now let's take a further step forward and we relate how power is related to the head. सबसे पहले तो आप ये देखें that power is defined as the ratio of doing as the rate of doing work. Power is the rate of doing work. क्या मतलब rate of doing work? Anything, by rate I mean anything done over a unit time. So power is rate of doing work, which means that it is nothing but work divided by time. And work divided by time, the units are either joule per second or न्यूटन मीटर पर सेकेंड. इन फ्लूइड मैकेनिक्स, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम स्लाइटली मॉडिफाई करते हैं एंड वी डिफाइन इट एज द रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड. Rate of energy being transferred, we simply write our power as energy divided by time. The units are same because energy is work. So energy upon time is nothing but joule per second or newton meter per second. And in terms of power, it is called the watt. So 1 joule per second is 1 watt, or 1 newton meter per second is equal to 1 watt. In this portion I am talking about the SI units. तो ये जो watt है ये आपका SI unit है power का. ये जो watt है ये या तो 1 जूल पर सेकंड होता है या 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है. अब हम फोकस करते हैं अपने एग्जाम्पल 7.2 को, जो हमने आपको यहां पर निकालना बताया था. द हेड HA हमने निकाला था 42.949 मीटर. ये हमने क्या निकाला था, इसको हम हेड डिफाइन करते हैं. और हेड का दूसरा डेफिनेशन होता है, इट इज द एनर्जी divided per weight of the fluid. When I talk about energy divided by weight, delivered energy of the oil flowed to the pump, तो हम इस तरह इसको देखते हैं, energy Newton meter divided by weight of the fluid Newton. So Newton meter and Newton will cancel out to give you meter. So the other definition is just the head. Now what we want to know is, we want to calculate the power. There is a relationship between the power and the head that we calculated. Let us look at this relationship. The relationship says that power P of A is equal to HA W, where W is the weight flow rate. W क्या होता है, weight flow rate, equation 1. और वेट फ्लो रेट मैंने आपको चैप्टर 6 के स्टार्टिंग में बता दिया था कि उसके यूनिट होते हैं एसआई सिस्टम में न्यूटन पर सेकेंड. अब बात करते हैं वेट फ्लो रेट की, जो इक्वेशन 2. वेट फ्लो रेट विच इज इक्वेशन 2 इज नथिंग बट गैमा स्पेसिफिक वेट UA, where U is the velocity, A is the area. That is equation 2. और इसके यूनिट न्यूटन पर सेकेंड है. तीसरा इक्वेशन क्या हुआ कि वेट फ्लो रेट कैन बी रिटन एज गैमा स्पेसिफिक वेट, वैसे के वैसे काउंट होगा. Q is equal to UA, so W can simply be put as gamma Q. That is equation 3. This equation 3, W is put in the original equation 1. So equation 4, which is our main equation, PA is equal to HA gamma Q. This is how power is related with the power related है weight flow rate के साथ. कैसे weight flow rate के साथ है या head के साथ कैसे related है. अगर आप सिंपली देखो तो हेड आप किस तरह रिलेट करते हो. आपकी जो एनर्जी रिलेट होती है ना, एनर्जी
related to head. How? क्योंकि head is nothing but head is equal to energy divided by weight of fluid, न्यूटन मीटर पर न्यूटन. इसी तरह you also know that your power is related to energy because power is equal to energy upon time. अगर एनर्जी रिलेटेड है हेड के साथ और पावर रिलेटेड है एनर्जी के साथ, तो इनडायरेक्टली पावर रिलेटेड है हेड के साथ, और वो रिलेशन ये आ रही है. पावर रिलेटेड टू द हेड इज नथिंग बट पावर ऑफ द पंप एट ए इज द हेड ऑफ द पंप मल्टीप्लाइड बाय द वेट फ्लो रेट, और वेट फ्लो रेट इज नथिंग बट गैमा क्यू. I repeat, मैं repeat कर रहा हूं. Power at point A of the pump is equal to the head flow rate of the pump multiplied by the weight flow rate, Newton per second. और weight flow rate हम gamma Q से define करते हैं. तो power equation क्या बन गया? Power at any point A is equal to HA gamma Q. अब अगर हम अपना पुराना इक्वेशन देखें और सिंपली वैल्यूज पुट करें, एच ए हमने पहले कैलकुलेट की थी 42.9 न्यूटन मीटर पर न्यूटन, गैमा 8.44 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था. कैसे? 9.81 इंटू 0.86. इस किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब को मैं न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि मेरी जो वेट फ्लो रेट होता है उसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब न्यूटन पर सेकंड होता है. तो गैमा का जो स्पेसिफिक वेट है उसके वैसे तो यूनिट 8.44 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, उसको अगर मैंने एसआई यूनिट में किया तो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा. तो जब न्यूटन पर मीटर क्यूब है और क्यू की वैल्यू भी मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, जब मैं इन तमाम चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन में, पावर एट ए इज एच ए यानी 42.9 न्यूटन मीटर पर न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय गैमा 8.44 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय क्यू 0.014 meter cube per second. This meter cube get cancelled. This Newton get cancelled. You are only left with 5069 Newton meter per second. और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बात बताई, न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज ऑल्सो इक्वल टू जूल पर सेकेंड. Joule per second is equal to watt. So if 1 Newton meter per second is equal to 1 watt, so 5069 Newton meter per second is equal to 5069 watt. इस 5069 watt को आप किलोवाट में लिख सकते हो 5.07 किलोवाट. सिर्फ आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको गामा को एसआई यूनिट्स में लाना पड़ेगा. तो ये जो पूरा जो मैंने आपको ये पूरी जो स्लाइड है इसके अंदर क्रक्स ये है कि ये इक्वेशन आपके काम का है और आपको मालूम होना चाहिए दैट हाउ इज पावर रिलेटेड विद द एनर्जी या एनर्जी फ्लोइंग या विद द हेड. दैट पावर एट अ पॉइंट ए इज नथिंग बट द हेड एट पॉइंट ए, यानी पावर ऑफ पंप एट ए is the head of the pump multiplied by the specific weight multiplied by the Q. चलें, अब बात करते हैं पावर की यूएस सिस्टम में. एसआई सिस्टम में तो हमने पावर को डिफाइन कर लिया. अमेरिकन सिस्टम में क्या होगा? एसआई के अंदर एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज न्यूटन मीटर. तो इसमें क्या होगा? न्यूटन इज इक्वल टू पाउंड फोर्स, मीटर फुट होता है, तो पाउंड फोर्स फुट हो गया. जिस तरह पावर होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, अमेरिकन सिस्टम में इट विल बी पाउंड फोर्स फुट पर सेकेंड यूनिट फॉर पावर.
मगर अमेरिकन सिस्टम में हम एक चीज यूज करते हैं जिसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं। एसआई के अंदर वॉट होता है, अमेरिकन में हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर क्या है? 1 horsepower इज इक्वल टू 550 पाउंड फोर्स फुट पर सेकेंड। तो अगर आपके पास 2 horsepower होगा तो वो 2 × 550 हो जाएगा। तो इस तरह हॉर्स पावर का रिलेशन होता है 1 horsepower इज 550 पाउंड फोर्स फुट पर सेकेंड। आपको सिर्फ एसआई और अमेरिकन में ये मालूम होना चाहिए दैट 1 horsepower is also equal to 754.7 watt. That is one relationship you should know, that 1 horsepower is 754.7 watt. So this is how you can convert the US system into SI. अगर मैं आपको 4 horsepower दे दूं तो 4 horsepower हो जाएगा SI में 4 × 754.7। तो ये आपने कन्वर्ट कर लिया पावर को अमेरिकन सिस्टम में। अब बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द पंप को। सबसे पहली बात ये, एफिशिएंसी कैसे डिफाइन की जाती है? एफिशिएंसी डिफाइन की जाती है रेशियो ऑफ द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप टू द फ्लूइड टू द पावर सप्लाइड टू द पंप। ये रेशियो है। रेशियो का मतलब है दोनों यूनिट्स कैंसल आउट हो जाएंगे, तो एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं है। दूसरी बात ये कि ये क्या है? ये है आपके पंप ने फ्लूइड को कितना पावर सप्लाई किया, बाकी पावर वेस्ट होता है, डिवाइडेड बाय द टोटल पावर आपने अपने फ्लूइड को आपने अपने पंप को कितना दिया। इसका मतलब ये, और एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा 1 से नीचे आती है या 100% से नीचे आती है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पावर जो आपने अपने पंप को दिया है वो लाजमी ज्यादा होगा उतने पावर से जो फ्लूइड को मिलता है पंप की वजह से, या इन अदर वर्ड्स जितना पावर आपका पंप फ्लूइड को देगा या पंप करेगा वो कम है उतने पावर से जो पंप को ओरिजिनली मिलेगा। 100% पंप अपना पावर नहीं दे सकता, देयर आर ऑलवेज सम एनर्जी लॉसेस या वेस्टेजेस। ये हमने अभी पिछले पार्ट में किया था, हाउ आर देयर एनर्जी लॉसेस। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बच्चों होता है पावर डिलीवर्ड टू द फ्लूइड by the pump divided by the power put into the pump. Power delivered to the fluid by the pump is PA और power input to the pump is PT यानी total P. So total P is always greater than PA, इसीलिए आपका जो आंसर होगा it is always greater than PA. इसी वजह से आपका आंसर लेस देन 1 होगा। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर की वैल्यू कम है, तो आंसर विल ऑलवेज इक्वल लेस देन 1। अब थोड़ी देर पहले हमने पावर और एनर्जी का रिलेशन देखा था लास्ट स्लाइड पे, दैट PA इज नथिंग बट HA gamma Q. So in other words, your efficiency can be defined as HA gamma Q divided by total power of the pump PT. मैंने सिर्फ PA को in terms of HA लिख दिया है, HA gamma Q, यानी HA specific weight head of the pump multiplied by specific weight of the fluid multiplied by the volumetric flow rate, या in other words head of the pump multiplied by the weight flow rate. The आम तौर पे the values of the mechanical efficiency of pump, they not only depend upon the design of the pump but also under the condition in which the pump is operating. यानी डिजाइनर्स ने जब ये डिजाइन करते हैं
पंप को, तो ये सिर्फ उसके कंडीशंस को नहीं करते या डिजाइन को नहीं करते कि इस डिजाइन पे किया है, ये उसकी कंडीशंस के ऊपर भी एफिशिएंसी को डिजाइन करते हैं। यानी वो हार्श कंडीशन में वर्क हो रहा है, वो एसिडिक कंडीशन में वर्क हो रहा है, वो लाइट कंडीशन में वर्क कर हो रहा है। और ये जो डिजाइनिंग है, इस पे दो चीजें डिपेंड करती हैं, योर टोटल हेड ऑफ द पंप एंड योर फ्लो रेट। टोटल हेड क्या है? टोटल हेड के अंदर मैंने आपको पहले बताया था, टोटल हेड इज द सम ऑफ ऑल द हेड्स, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, पंप हेड, उनका जो टोटल हेड था, यानी एक आपका टोटल हेड आपका पंप का और वो फ्लो रेट का, जिस फ्लो रेट से आप पंप कर रहे हो। आम तौर पे जो पंप्स होते हैं ना, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, उनकी जो रेंज है एफिशिएंसी की, वो होती है बिटवीन 70 to 90%। देखिए 100% नहीं जाएगी हाइड्रोलिक सिस्टम में। और एक जो पंप होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो जो वेरी करते हैं, वो वेरी करते हैं 50 to 85%। आपको मैंने बताया हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, दैट इज अनदर डायमेंशन। मगर आप ये देख लें कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो एफिशिएंसी है वो 50 to 85 है और रेसिप्रोकेटिंग की 70 to 90 है। तो अभी तक मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं पंप्स के बारे में। पहली चीज मैंने आपको पंप के बारे में एक्चुअली तीन चीजें बताई हैं। एक चीज तो मैंने आपको बताई है पावर कन्वर्जन्स की, यूएस टू एसआई यूनिट कैसे आता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है पावर लिंक्ड विद द हेड, यानी पी ए इज इक्वल टू एच ए डब्ल्यू, where W is equal to gamma Q. So PA is equal to HA gamma Q. That was point 2. Point 3 मैंने आपको बताया है एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी होती है the power supplied by the pump to the fluid in pumping divided by the total power that you input to the pump, and the value of efficiency is always less than 1. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पावर जो आपने पंप में दिया है वो 100% ज्यादा होगा उस पावर से जो आपका पावर फ्लूइड को मिल रहा है पंप के जरिए, बिकॉज सम एनर्जी लॉसेस ऑलवेज एग्जिस्ट। देयर इज नो सच केस विच इज एन आइडियल केस, या 100% एफिशिएंसी आज तक दुनिया में नहीं हुई है। चलें, अब ये हमने बात की थी पंप्स के बारे में। जो फ्लूइड मोटर्स होती हैं वो पंप्स का उल्टा होता है। जब हम पिछले पार्ट में बात कर रहे थे तो मैंने आपको क्या कहा था, एच ए इज एडेड बाय द पंप, दैट हेड एडेड बाय द पंप, एंड एच आर क्या करते हैं, दैट इज दैट हेड रिमूव्ड बाय द मोटर्स या टर्बाइन। तो जो मोटर्स होती हैं ना, उनका फंक्शन जो होता है वो पंप के ऑपोजिट होता है। तो अब ये देखें, द एनर्जी डिलीवर्ड बाय द फ्लूइड टू अ मैकेनिकल डिवाइस सच एज फ्लूइड मोटर या टर्बाइन इज डिनोटेड बाय एच आर इन द जनरल एनर्जी इक्वेशन। पहले मैंने आपको दिखाया था। दिस एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ईच यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड एज इट पासिस द डिवाइस, यानी हेड। अब जैसे आपने पंप के लिए बनाया था ना, पी ए इज इक्वल टू एच ए डब्ल्यू, यानी पी ए इज इक्वल टू एच ए गैमा क्यू। उसी तरह एक फ्लूइड मोटर्स के लिए बना जाएगा जिसमें द पावर इज कैलकुलेटेड एज पी आर इज इक्वल टू एच आर, जो आपका हेड है, डब्ल्यू जो आपकी है वेट फ्लो रेट। इन अदर वर्ड्स एच आर gamma q, where again w has to be in न्यूटन पर सेकेंड। तो जो आपका गैमा है ना, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, उसके वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलिएगा टू मेक इट इन एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो पी आर इज द पावर डिलीवर्ड बाय द फ्लूइड टू द फ्लूइड मोटर।
सिंपल वर्ड्स के अंदर। अब जैसे देयर इज अ मैकेनिकल एफिशिएंसी फॉर द पंप्स, देयर इज आल्सो अ मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड मोटर्स। ये क्या होती है? एज डिस्क्राइब फॉर द पंप, energy losses in fluid motors are produced by mechanical and fluid friction. Hence, not all the power delivered to the motor is converted to power output from the device. जैसे पंप्स के अंदर जितना आप पंप को पावर देते थे, सारा वो फ्लूइड के अंदर यूज नहीं होता था, उसका एक फ्रैक्शन यूज होता था एंड अ फ्रैक्शन वाज लेफ्ट बिहाइंड। इसी तरह पंप्स की भी यही कहानी है। अब पंप्स में क्या होता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज पावर आउटपुट फ्रॉम द मोटर डिवाइडेड बाय पावर डिलीवर्ड बाय द फ्लूइड। यानी पी नॉट पावर आउटपुट मोटर से कितना है और पावर डिलीवर्ड बाय द फ्लूइड, फ्लूइड कितना पावर डिलीवर कर रहा है, और इसकी भी जो वैल्यू ईएम की है वो हमेशा लेस देन 1 है। फर्क क्या है? ये पंप का उल्टा है। अगर आप पंप को देखो तो पंप क्या होता है? कितना पावर पंप फ्लूइड को दे रहा है डिवाइडेड बाय कितना पावर पंप को मिल रहा है आपसे। तो इसके अंदर पावर जितना पंप फ्लूइड को दे रहा है वो उससे कम है जितना पावर आप इनपुट कर रहे हो पंप में, इसलिए आपका आंसर 1 से कम आ रहा है। मोटर में उल्टा है। मोटर में क्या है? कितना पावर आउटपुट मोटर को मिल रही है, यानी आप कितना आउटपुट पावर दे रहे हो, डिवाइडेड बाय हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड बाय द फ्लूइड। दैट मीन्स दैट द पावर डिलीवर्ड बाय द फ्लूइड, जितना फ्लूइड डिलीवर करता है, दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन द पावर आउटपुट बाय द मोटर। पावर आउटपुट बाय द मोटर है ना, वो वैल्यू कोई कम वैल्यू होगी compared to power delivered by the fluid. Okay, numerator has to be smaller than the denominator. तो दोबारा इक्वेशन देखें, efficiency for a pump is PA upon PT. Efficiency for a motor is PO upon PR, where PR can also be written as HR gamma Q. This relation PR is equal to HR gamma Q. तो बात समझ आई? जो मोटर का जो काम होता है ना, वो पंप का उल्टा होता है। पंप एडिशन करता है एनर्जी को, मोटर रिमूवल करती है एनर्जी की। पंप उसका इनपुट ज्यादा होता है कंपेयर टू हाउ मच इज पंप टू द फ्लूइड, और मोटर में उल्टा होता है, उसका जो आउटपुट होता है वो कम होता है कंपेयर टू हाउ मच द फ्लूइड इज पंपिंग टुवर्ड्स द मोटर। रिवर्स हो जाता है, पंप टू फ्लूइड, फ्लूइड टू मोटर। अब एक वर्क एग्जांपल देखेंगे, और ये कॉम्बिनेशन है लेक्चर 7 के पूरे का कंबाइन होने का। Water at 10 degrees Celsius is flowing at a rate of 115 liter per minute through the fluid motor shown in the next slide. The pressure at A is 700 kilopascal while B is 125 kilopascal. It is estimated that due to the friction in the tubing, there is an energy loss of 4 Newton meter per Newton. In other words, 4 meter head loss. किसके अंदर हेड लॉस हो रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन इन द ट्यूबिंग। तो ये क्या होती है? HL, क्योंकि हमने HL क्या बात की थी? पाइप्स, ट्यूबिंग्स, वाल्व्स और फ्रिक्शन की। और यहां पर आपको मैं बता रहा हूं at A the tubing entering the fluid motor is a standard steel hydraulic tube जिसका मैंने आपको OD दिया हुआ है और वॉल थिकनेस दिया हुआ है। तो अगर आपके पास डेटा के अंदर एरिया नहीं हो तो आपके पास OD है, आप ID ढूंढ सकते हो। 25 माइनस 2 इंटू 2 21 हो जाएगा। 21 इंटू 10 टू द पावर -3 SI यूनिट्स हो जाएगा। उसके बाद आप पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 करो, आपको आपकी एरिया मिल जाएगी आपके ट्यूबिंग की।
अब देखें मुझे क्या ढूंढना है। सब दो पार्ट है। पहला पार्ट है मुझे ढूंढना है द पावर डिलीवर्ड टू द फ्लूइड मोटर बाय द वाटर। पावर डिलीवर्ड क्या होता है? पी आर। कितना पावर मैंने डिलीवर किया है? पी आर। और आपको मैंने बताया था पी आर इज नथिंग बट एच आर गैमा क्यू, विच मीन्स दैट पी आर ढूंढने के लिए मुझे सबसे पहले एच आर ढूंढना पड़ेगा, and HR is found from the energy equation which is done before. पार्ट बी क्या है? मैकेनिकल एफिशिएंसी उन्होंने मुझे दी है और मैं आपसे आपका पावर आउटपुट मांग रहा हूं। तो पहले पार्ट ए की बात करते हैं। स्टेप वही है, सबसे पहले अपना डेटा देखें। डेटा में आपको दिख रहा है कि ये एसआई यूनिट्स में है। आपको दूसरी चीज ये दिख रही है, दिस इज one type of tubing and pipe. This is another type of tubing and pipe. इसका OD 25 मिलीमीटर है, इसका OD 80 मिलीमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का अगर OD डिफरेंट है तो दोनों का ID भी डिफरेंट होगा। एरिया आपकी ID पे बेस्ड होती है। दोनों का अगर एरिया डिफरेंट है तो डेफिनेटली दोनों की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। वेलोसिटी एट दिस पोर्शन is different from velocity at this portion because it is not the same dimension pipe. ये तो आपने फैक्ट बना लिया। दूसरा फैक्ट आपने ये बना लिया कि जिस तरह मैं आपको बोलता हूं Q इज इक्वल टू यू ए, Q इज इक्वल टू यू ए, तो अगर इस पाइप की एरिया ज्यादा है तो इस पाइप की वेलोसिटी कम होगी, इस पाइप की एरिया कम है तो इस पाइप की वेलोसिटी ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट, फ्लो रेट क्वेश्चन में गिवन है। फ्लो रेट डज नॉट चेंज बिटवीन एनी टू सेक्शंस because of continuity equation, and you know that your fluid is from section A to B flow, तो A और B के बीच में आप एनर्जी बैलेंस लगाएंगे। तो ये तो आपको इंफॉर्मेशन बता रहा था। चौथी बात, सबसे पहले आप अपनी फ्लो रेट देख लें। अगर आपको आपके अपने पाइप की एरिया यहां से मालूम पड़ जाएगी और आपको फ्लो रेट क्वेश्चन में दिया है, so the only unknown which you will need is your velocity. Velocity can be found from the data. मगर ये अगर SI यूनिट में है तो this should be in SI unit also. 115 liter per minute is not the SI unit. The SI unit is meter cube per second. तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो फ्लो रेट है उसको मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो ओवरऑल हिस्ट्री मैंने आपको बताई। दूसरी बात ये कि यहां पर तो मुझे मालूम है कि 10 डिग्रीज के ऊपर मेरा स्पेसिफिक वेट कितना होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सपोज मैं आपको 25 डिग्रीज दे देता तो रट के नहीं आ जाइएगा, डू नॉट रिमेंबर 9.81 बिकॉज स्पेसिफिक वेट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर। द हायर टेम्परेचर यू यूज, यानी जितना टेम्परेचर हाई जाता है उतना आपका स्पेसिफिक वेट कम होता है। तो अगर मैं आपको 25 डिग्रीज देता हूं सो आप अपने अपेंडिक्स या डेटा में जाएंगे, वहां पर 25 डिग्रीज पे देखेंगे स्पेसिफिक वेट कितना है। लेट से वो 9.81 से डेफिनेटली कुछ कम होगा, 9.75 है, तो आप अपने क्वेश्चन के लिए 9.75 अज्यूम करेंगे। सपोज मैं ऐसी वैल्यू दूं जो दो वैल्यूज के बीच में है आपके इंफॉर्मेशन में, समथिंग लाइक 27, और आपके पास टेबल में 25 है और टेबल में 30 है। तो 27 पे पहले आप उसकी वैल्यू निकालेंगे बाय द लिनियर इंटरपोलेशन, जो मेथड मैंने आपको चैप्टर 6 में सिखाया था। अगर आपको याद नहीं है तो द फॉर्मूला फॉर लिनियर इंटरपोलेशन इज y1 is equal to y plus bracket open y2 minus y1 divided by x2 minus x1 bracket close multiplied by x minus x1।
ये लिनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला दोबारा देख लीजिएगा लेक्चर 6 में. So you will apply that formula if your temperature is something which is not in the table. तो fortunately 10 degrees आपकी टेबल में 9.81 है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. You know that your weight is 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. अब आप अपना इंफॉर्मेशन रीड करें. आपको मालूम है कि 25 मिलीमीटर ओडी ट्यूब है, 2 मिलीमीटर आउटर थिकनेस वॉल है. ये वाली 80 मिलीमीटर ओडी ट्यूब है, 2.8 मिलीमीटर वॉल है. आपको आपका डेटा मिलेगा, एग्जाम में आपको दिया जाएगा ट्यूबिंग डेटा, इट विल बी लेबल्ड. आप सबसे जाएं पहले 20, दिस इज द आउटर डायमीटर, दिस इज द थिकनेस, दिस इज द इंटरनल डायमीटर एंड दिस इज द एरिया, ऑल इन एसआई यूनिट्स, और ये मिलीमीटर में होते हैं. आप जाएं, आपको क्वेश्चन में क्या है, 25 मिलीमीटर ओडी, 2 मिलीमीटर वॉल. आप यहां पर देखें दो ओडी 25 हैं, एक ये 25 है, एक ये 25 है. बट दिस 25 इज अ 1.5 मीटर वॉल, दिस 25 इज 2 मीटर वॉल. आपको 2 मिलीमीटर वॉल, आपके क्वेश्चन में 2 मिलीमीटर वॉल थी, तो आप उसकी एरिया कॉपी डाउन कर लें अगर आपके पास एरिया है. अगर एरिया नहीं है तो आप एरिया कैलकुलेट कर लें, 25 माइनस 2 इंटू 2, 21, पाई डी स्क्वायर कर लें इसके ऊपर, पाई डी अपॉन 4 स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. कोइंसिडेंटली मेरे पास है, तो मैंने इसकी एरिया कैलकुलेट कर ली या कॉपी डाउन कर ली, 3.454464 into 10 to the power minus 4. Similarly, this was the 80 millimeter, 2.8 millimeter wall. There is only one 80 millimeter. ये रहा. Even though this is 2.8 millimeter, this is 2.8 millimeter, ये 60 है, ये 80 है, तो मैंने 80 के ऊपर 4.347 into 10 to the power minus 3 कॉपी कर लिया एरिया. अच्छा जनाब, अब मैं एरिया मैंने ले लिया क्योंकि मुझे फ्लो रेट से एरिया यूज करना होगा वेलोसिटी ढूंढने के लिए. अब सबसे पहले मैं फ्लो रेट को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर दूं, उसकी वजह मैंने आपको बताई थी. ये मुझे मेरी फ्लो रेट भी मिल गई कन्वर्ट कर कर. कैसे? 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. अब वेलोसिटी की बात करते हैं. Velocity at section A. Looking at my diagram, the flow is from A to B. Section A is this pipe, section B is this pipe. तो velocity मुझे कैसे निकाली? Q is equal to UA. यहां पर मेरी जो UA था वो था 3.464 into 10 to the power minus 4. मुझे U मिली 5.531. यहां पर भी मैंने Q is equal to UA निकाला, मुझे U मिली 0.44076. प्लीज अपने ऊपर फेथ रखिएगा, इन वैल्यूज को देखकर घबराएं नहीं. इतना फर्क क्यों आ रहा है? अगर आप एरिया देखें, यहां पर एरिया है 3.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यहां पर है 4.347 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. माइनस 3 इज 10 टाइम्स मोर देन माइनस 4. अगर ये दोनों -4 की रेंज में होते तो ये एरिया मोर और लेस करीब होते, मगर क्योंकि ये एरिया ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ग्रेटर है, -3 इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन -4, उसकी वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट -10 टाइम्स कम है. 5.53 यहां पर है, अगर उसको एग्जैक्टली 10 टाइम्स कम करते तो 0.55 हो जाती, यहां पर 0.44 है. तो ये चीजें दिमाग में रखें कि इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर के एरिया कितने फैक्टर से बड़ा है. तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप घबरा जाएंगे देखकर और बार बार करेंगे, यू विल रन आउट ऑफ टाइम. तो आपने अपनी वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड आउट कर ली. अब मैं अपना प्रेशर इक्वेशन फाइंड आउट करूं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो पीआर चाहिए, मगर पीआर ढूंढने के लिए मुझे एचआर ढूंढना पड़ेगा. तो मैं अपना ए के ऊपर बैलेंस लगाऊं, ए और बी के ऊपर. पी ए अपॉन गैमा प्लस जेड ए प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन 2G
माइनस एच आर माइनस एच एल। अगर मैं प्रॉपर बैलेंस लगाता तो मैं एच ए भी लगाता, मगर मुझे डायग्राम में दिख गया था कि पंप है ही नहीं, तो मैंने एच ए को पहले ही हटा दिया। मगर आप लोग जब डिजाइनिंग करें तो पहले एच ए जरूर डाल दें, बाद में उसको जीरो कर दें कि देयर इज नो पंप। तो माइनस एच आर माइनस एच एल इज इक्वल टू पी बी अपॉन गैमा प्लस जेड बी प्लस वी बी स्क्वायर अपॉन 2g। पीए वॉज गिवन इन द क्वेश्चन 700 किलो पास्कल। अब वो मैंने किलो पास्कल और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की बात की थी ना, क्योंकि क्वेश्चन में 700 किलो पास्कल है, आई कैन टेक 9.81 किलो न्यूटन। अगर ये 700,000 पास्कल होता तो आई वुड हैव हैड टू चेंज 9.81 इंटू 9810। सही है, 700 डिवाइड बाय 9.81 प्लस 1.8। My reference level of A is 1.8 compared to reference level at B which is 0. सही है, 1.8 हो गया। VA स्क्वायर मैंने अभी पीछे ढूंढी कि वेलोसिटी इन सेक्शन A कितनी है, 5.53, बिकॉज द एरिया इज वेरी स्मॉल ओवर हियर। तो ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19.62 माइनस एच आर। एच आर ही तो मुझे ढूंढनी है, और एच एल क्वेश्चन में गिवन था 4 न्यूटन मीटर पर मीटर इसका लॉस हो रहा है, तो यहां से मुझे 4 मिल जाएगा। गिवन है इज इक्वल टू 125 दूसरा प्रेशर गिवन है, 9.81 उसकी स्पेसिफिक वेट है, प्लस 0 रेफरेंस लेवल 0, 0.4740 VB है डिवाइड बाय 19.62। When you solve this question and all these terms, you simplify it, you get the value HR, which comes out to be 57.9629 meter. But this was not your answer, because ये तो हमने सिर्फ head ढूंढा, because this head was needed for your power at the motor. आपका क्वेश्चन क्या है, पावर चाहिए मुझे डिलीवर्ड टू द फ्लूइड मोटर बाय द वाटर। तो चलें अब इसको ढूंढ लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इक्वेशन बताया था दैट पावर इज डिफाइंड एज द हेड मल्टीप्लाइड बाय द वेट फ्लो रेट। इन अदर वर्ड्स, power at a motor is defined as the head of the motor multiplied by the specific weight multiplied by the Q, गैमा Q। तो वही चीज मैंने की। हेड ऑफ द मोटर अभी अभी मैंने ढूंढा है, गैमा 9.81 है, गैमा डज नॉट चेंज। और Q मैंने इनिशियली SI यूनिट्स में ढूंढ लिया था, 1.916 into 10 to the power minus 3। Don't forget to change the 9.81 into Newton, because W is SI unit Newton per second। अगर आपने न्यूटन में चेंज नहीं किया तो आपका आंसर गलत आएगा, तो आपने इसको न्यूटन में चेंज कर लिया। अब न्यूटन में चेंज करने के बाद जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो योर पी आर इज 1089 जूल पर सेकेंड, और it should be 1089 joule per second या 1.089 किलोवाट। 1.089 किलोवाट या 1.089 जूल पर सेकेंड, और 1089 जूल पर सेकेंड या न्यूटन मीटर पर सेकेंड। किलोवाट is 1000 times greater than a watt. That was the part 1 of the answer. That is the energy supplied to the fluid, power supplied to the fluid. मैंने आपको क्या कहा क्वेश्चन में, power supplied to the fluid, power supplied to the motor by the fluid। सेकेंड पार्ट क्या है, मैंने आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी दी है, और मैंने आपको बताया है कि 85% मैकेनिकल एफिशिएंसी है, विच मींस दैट 0.85 है, और मैं आपसे पावर आउटपुट बोल रहा हूं। तो पहली बात तो यह है कि अगर आपकी
पावर जो फ्लूइड सप्लाई कर रहा है मोटर को, अगर वो 1085 वॉट है, तो आउटपुट पावर जो मोटर का होगा वो लाजमी उससे कम होगा या ज्यादा होगा? बताएं। उससे कम होगा, क्योंकि मोटर वॉज द इनवर्स ऑफ पंप। पंप में क्या होता है, जो पंप में आप पावर डालते हैं वो उससे ज्यादा होता है जितना पंप फ्लूइड में बेचता है। और मोटर में क्या होता है, जितना मोटर से पावर निकलेगा, पावर आउटपुट पीओ, वो उससे कम होता है जितना उस मोटर को फ्लूइड पावर देगा, यानी पी आर। तो इसीलिए आपका जो फॉर्मूला था दैट वाज पीओ अपॉन पी आर इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो अब मैंने वही किया कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इज नथिंग बट पीओ अपॉन पी आर, पावर आउटपुट फ्रॉम द मोटर फ्लूइड के लिए, पावर आउटपुट फ्रॉम द मोटर, एंड पी आर क्या है, पावर डिलीवर्ड बाय द फ्लूइड टू द मोटर। 0.85 मुझे एफिशिएंसी दी हुई है, पावर आउटपुट मुझे ढूंढना है। पी आर क्या है, 1089 वॉट। अभी मैंने ये देखा, यहां से आ रहा है 1.089 वॉट। सॉरी, ये किलो वॉट नहीं है, वॉट है, 1.089 वॉट। अभी मैंने कैलकुलेट किया है, तो यकीनन जो पावर आउटपुट का वैल्यू आएगा वो सम वैल्यू लेस देन 1.089 आएगा, और वो आया 0.926 वॉट, द पावर आउटपुट फ्रॉम द मोटर। पावर आउटपुट फ्रॉम द मोटर डिवाइडेड बाय पावर डिलीवर्ड बाय द फ्लूइड। पावर डिलीवर्ड बाय फ्लूइड में पहले कैलकुलेट कर चुका था 1.089, और एफिशिएंसी हैज टू बी लेस देन 1, so power output from the motor should be less than the power delivered by the fluid. Again I repeat, ये इनवर्स है जो पंप में होता है। नाउ जब तक आप ये क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। सो आई वुड लाइक यू टू डू दीज क्वेश्चंस एंड ब्रिंग देम इन योर नेक्स्ट क्लास। दे विल बी ग्रेडेड एज वुड बी चैप्टर 6 क्वेश्चंस। if you have any problems if you have any problems please get back to me, I will help you out. एक चीज मुझे आपको सिर्फ ये बतानी है कि यहां पर जो एक क्वेश्चन है 7.13, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। 7.13, pressure of A is equal to minus 275 kilopascal in this numerical. That is wrong. It should be minus 20 kilopascal. Use this value, minus 20 kilopascal, for question 7.13. Here. That is the only change I want to tell you. So, अब let's take a recap. आज के lecture में we talked about the pressure of pumps and motors. We discussed how we talked about the power of the pumps and motors. We discussed how the power and the motor, power of the pump and the motor is inversely related to each other. We also discussed how they are related with the head. तो ये मैंने आपको कोई चीजें बातें बताई थी, इनको देख लीजिएगा, आज ही पढ़िएगा और मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि अगर आपको समझ नहीं आती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट विथ लेक्चर 8 where we talk about the Reynolds number, laminar flow and turbulent flow. Thank you.